good morning everyone. Welcome to the class of business studies. So in our previous class, we have discussed chapter number 11, a topic of chapter number 11, that is the marketing mix. We have started with the meaning of marketing mix. We have discussed that marketing mix means all the ingredients or tools that a marketer need to mix in order to interact with any particular market. It means all the activities related with market, when these are performed in a proper way, we can call the concept as marketing mix. It is the essence of marketing and it has four main elements. We have already discussed the four important elements of marketing mix, that are product, price, place and promotion. Product, price, place and promotion. We are going to discuss all these elements one by one. In our previous class, we have started our discussion on product, right? What is product? Anything which is offered to a customer is known as product. Anything which is having some utility, anything which is having the power to satisfy the customer and which is offered to the customers is known as product. In case of marketing, a product can be tangible as well as intangible. It means, according to the concept of marketing management, there is no difference between product and service. In practical life, there is a difference between product and service. You have gone through the difference in your class 11. But according to this chapter, there is no difference between product and service. So product is a bundle of utilities. Product is a bundle of utilities. And we have discussed about product mix and product assortment. Both are very important, product mix as well as product assortment. Product mix means taking all the important decisions related with product, such as the size of product, design of product, everything, each and everything, right? And product assortment means the number and types of product which will be offered by a particular organization. ये important दो चीजें हमने product के अंदर पढ़ी थी. Then after have a look important components of product mix. ये हमें आज start करना है. बहुत सारे नए यहाँ पे आपको 1 mark questions मिलेंगे, but trust me, the topic is very simple. Branding, you all know what is the meaning of brand, है ना? हम brand conscious होते हैं कुछ particular चीजों में, तो brand क्या है ये आप सबको पता है. बस उस brand के बारे में ही डिटेल में पढ़ेंगे. What is the meaning of branding, what is brand, and why the brand name is given to a product. These are the simple things which we are going to discuss in our further topics. Have a look. Before starting branding, let me introduce with the 3 important components of product mix. Whenever we are talking about product mix, it includes 3 main things. Number 1 branding, number 2 packaging, and number 3 labeling. एक ब्रांड नेम होगा जिसके साथ हमारा प्रोडक्ट सेल आउट होने वाला है, प्रोडक्ट की प्रॉपर पैकेजिंग होगी और पैकेजिंग के ऊपर लगेगा एक बढ़िया लेबल. तो ये प्रोडक्ट मिक्स के 3 एलिमेंट्स हैं. नाउ हैव अ लुक व्हाट इज रिटन अंडर ब्रांडिंग. One of the most important decisions that a marketer has to take in the area of product is respect of branding. In respect of branding आएगा is that he has to decide whether the firm's product will be marketed under brand name or generic name. सबसे पहले you need to decide कि आपके प्रोडक्ट को आप ब्रांड नेम से सेल करोगे या जेनेरिक नेम से सेल करोगे. जेनेरिक नेम क्या है? जैसे साबुन, टॉयलेट सोप जेनेरिक नेम है. जितनी भी सोप्स है वो सारी टॉयलेट सोप्स है. लेकिन आपने उसमें पर्टिकुलर अपनी सोप को एक नेम दे दिया जैसे कि लक्स, तो आपका हो गया ये ब्रांड नेम. तो जेनेरिक नेम और ब्रांड नेम क्या होता है ये पढ़ते हैं, फिर हम देखेंगे कि वेदर वी आर गोइंग टू सेल आवर प्रोडक्ट विद द जेनेरिक नेम और वी आर गोइंग टू सेल इट विद द नेम ऑफ ब्रांड इटसेल्फ. तो हैव अ लुक. Generic name refers to the name of whole class of the product. For example, toilet soap is a generic name, but Lux is a brand name. In the same way, mobile phone is a generic name, but Apple, Samsung, Nokia are brand names. काफी बार होता है ना घी परचेज करना है, एक होता है खुला घी लेके आते हैं हम, तो वो जेनेरिक नेम से चल रहा है. लेकिन एक होता है अमूल घी परचेज कर रहे हैं, अमूल का ही घी परचेज कर रहे हैं, तो वो क्या है, वो उसका ब्रांड नेम है. So I hope the concept of generic name and brand name is clear to everyone. एक तो मुझे राइस लेने हैं, नॉर्मल राइस लेके आ जाती हूँ वो जेनेरिक नेम से. एक मैं बासमती के राइस लेके आ रही हूँ तो वो क्या है, ब्रांड नेम है. Is it okay to everyone? क्या मुझे कोई और एग्जांपल बता सकता है जिसमें जेनेरिक नेम से कोई प्रोडक्ट आप लाते हो या कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो आप ब्रांड नेम से लाते हो? Anyone in the class? Anything which your family is buying with the generic name itself, हम ब्रांड नेम देखते ही नहीं है. सिर्फ प्रोडक्ट बस ये लेना है, ये वाला ले लिया.
ऐसा कुछ भी नहीं है आपकी नॉलेज में? यस कुशाग्र। मिल्क, पनीर, बिल्कुल। कैन यू गिव मी वन एग्जांपल ऑफ मिल्क वेयर इट इज सोल्ड विद द ब्रांड नेम? मैम अमूल, और खुला दूध लेके आते हैं वो अलग, अमूल, जेनरिक होता है। बिल्कुल। लेकिन जनरली हमारे घरों में, मेरे घर में जो मिल्क आ रहा है दैट कम्स विद द जेनेरिक नेम ऑफ मिल्क ओनली, राइट? चलिए, वेरी गुड, ये कंसेप्ट सबको क्लियर हो गया। अब देखिए, if products are sold by generic name, then it will be difficult for the marketer to differentiate its product from that of competitor. That is why brand name is given to the product. क्या कह रहे हैं कि अगर आपने अपना प्रोडक्ट जेनेरिक नेम के साथ सेल किया, then it will become tough for your marketer to differentiate the product. आप कैसे पब्लिसिटी करेंगे, आप कैसे अपने प्रोडक्ट को अपने कॉम्पिटिटर्स के कंपैरेटिवली सुपीरियर बताएंगे? चांस ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मार्केटर क्या करता है, इसीलिए वो ब्रांड नेम देना प्रेफर करता है। नाउ हैव अ लुक, मेनी टाइम्स स्टूडेंट्स राइट द मीनिंग ऑफ ब्रांडिंग एज दिस definition, but make sure this is the meaning of brand. ये ब्रांड का मीनिंग दिया हुआ है आपको, ब्रांडिंग की डेफिनेशन आपको खुद बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए क्या है ब्रांड। ब्रांड इज द, यहाँ पे आप ऐड कर लीजिए मीनिंग ऑफ ब्रांड। ये मीनिंग लिखा हुआ है ना, बच्चे क्या करते हैं, ब्रांडिंग की हेडिंग में मीनिंग है, चलिए ये तो ब्रांडिंग का ही डेफिनेशन है। नो, इट इज द मीनिंग ऑफ ब्रांड नेम। सो हैव अ लुक, a brand is the identification of the product. जैसे आपका नाम है ना, आपका आइडेंटिफिकेशन नेम। मैं कह दूं 12th कॉमर्स के स्टूडेंट्स, तो ये आपके जेनरिक नेम है, बट मैं कह दूं पर्टिकुलर भानु से किया, तो ये उसका ब्रांड नेम है। तो इसी तरीके से ब्रांड इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रोडक्ट। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ नेम, सिंबल और डिजाइन एक्सेट्रा. The branding is not only done to identify the seller or producer, but also to make your product superior than competitors' product. ये कह रहे हैं ये नाम भी हो सकता है, सिंबल भी हो सकता है, डिजाइन भी हो सकता है। जैसे आईफोन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उस पे लिखा हुआ होता है क्या कि एप्पल का है? बताइए जल्दी से। आईफोन पे लिखा हुआ होता है क्या कहीं कि ये एप्पल का प्रोडक्ट है? आप लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि एप्पल कंपनी का है? लोगो से, लोगो से, बिल्कुल, सिंबल के फॉर्म में। काफी प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसपे सिंबल के फॉर्म में ब्रांड होता है, ठीक है, नाम नहीं लिखा हुआ होता हर जगह। तो ये कह रहे हैं, फिर ये कह रहे हैं आप अपने प्रोडक्ट को, अपने ब्रांड नेम को यूज करके कॉम्पिटिटर से सुपीरियर भी बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कॉम्पिटिटर से सुपीरियर भी बना सकते हैं। जब आप अपने प्रोडक्ट पे ब्रांड नेम लिख देंगे तो वो बन जाएगा मोर सुपीरियर एज कंपेयर टू योर कॉम्पिटिटर। आगे देखिए, branding is much more than an identification mark. It is a seller's promise to deliver quality and satisfaction of buyer's expectation. ये कह रहे हैं ब्रांडिंग इज मच मोर देन आइडेंटिफिकेशन मार्क। सिर्फ एक मार्क नहीं है, ये एक ट्रस्ट है जो कस्टमर ने सेलर पे किया, और बदले में सेलर की तरफ से ये प्रॉमिस है कि इफ यू आर परचेजिंग अ पर्टिकुलर ब्रांड देन यू विल नॉट बी चीटेड। आप अगर पैसा दे रहे हैं तो आपके साथ धोखा नहीं होगा। इट मीन्स अगर मैं ब्रांडेड क्लोथ्स ला रही हूँ तो ये एश्योरेंस है कि उनका कलर डल नहीं होगा, वो फटेंगे नहीं। तो कुछ ब्रांड जो है वो पर्टिकुलर ब्रांड कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को सेटिस्फाई करता हुआ बायर का, सेलर का प्रॉमिस है। आगे देखिए, with brand we can easily identify which all product belong to a particular company. हमें पता चल जाएगा कौन सा प्रोडक्ट किस कंपनी का है। When firms develop good reputations about quality, then brand helps them enjoy a greater control over the customers and develop brand loyalty. ये कह रहे हैं अगर आपका ब्रांड नेम फेमस हो गया, अगर आपकी रेप्यूटेशन बन गई और आपका ब्रांड नेम मार्केट में चल गया, तो अब आप कस्टमर्स को अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं। आपकी ब्रांड लॉयल्टी ऐसी डेवलप हो जाएगी कि आप क्या कर सकते हैं, कस्टमर को अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। चलिए, लेट मी नो, कैडबरी का नया प्रोडक्ट आता है तो हम बहुत डरते हैं क्या उसको यूज करने से, या हम बहुत इजीली उसको यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं? जब कैडबरी डेयरी मिल्क सिल्क आई थी तो क्या हमें ऐसा लगा था कि अच्छी होगी या नहीं होगी? बताइए। बताइए जागृति, डेयरी मिल्क सिल्क पसंद है आपको? जागृति, Yes, ma'am. डेयरी मिल्क सिल्क, डू यू लाइक डेयरी मिल्क सिल्क? Yes, ma'am. जब कैडबरी ने डेयरी मिल्क सिल्क इंट्रोड्यूस की थी तो आपको डर लगा था क्या उसको यूज करने से, या फिर हमें पता No, था ma'am. कि कैडबरी का प्रोडक्ट है तो बढ़िया ही होगा?
नो मैम, नहीं डर लगता। लगा था थोड़ा सा? चलिए, नो जनरल मैम। नहीं लगा था, वेरी गुड। तो जनरली क्या होता है, ब्रांड नेम है, फेमस है, अब डव कोई भी न्यू सोप लेके आता है, कस्टमर इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं बिकॉज दे नो दैट दिस इज अ कंपनी ऑन विच वी कैन ट्रस्ट, राइट? तो यही चीज ये यहाँ पे आपको कह रहे हैं। अब देखिए कुछ टर्म्स है, आप लोग समझाएंगे। सबसे पहले ब्रांड का मतलब बता रखा है, ये तो हमने ऊपर भी पढ़ा है, व्हाट इज अ ब्रांड। चलिए भाई भानु सेठिया, रीड एंड एक्सप्लेन। भानु बेटा, रीड एंड एक्सप्लेन, बी क्विक। A brand is an identification of a product. It can be in form of name, symbol or design. मैम ब्रांड जो है उसकी अपनी आइडेंटिफिकेशन होती है और वो कोई भी तरह से हो सकती है, नेम से, सिंबल से और डिजाइन उसके लोगो टाइप लोगो से भी। जैसे कि डिटॉल नाइक, जैसे नाइक का एक टिक होता है और डिटॉल का अपना सबका एक लोगो होता है। इवन वेरियस सिंबल्स सच एज etc आर आल्सो द ब्रांड। चलिए ओके, ब्रांड इटसेल्फ इज एन आइडेंटिफिकेशन मार्क, ब्रांड का आइडेंटिफिकेशन नहीं होता। ओके, लक्ष्य चौधरी, ब्रांड नेम बेटा, एक्सप्लेन द ब्रांड नेम। लक्ष्य चौधरी, बी क्विक। लक्ष्य चौधरी, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ब्रांड नेम। वेरी गुड, नो रिस्पॉन्स। राघव मोदी, राघव मोदी। Yes, ma'am. यस बेटा। एक मिनट ma'am. Brand name. The part of the brand which can be spoken called brand name. In other words, we can say the verbal part of a brand. For example, Dettol and Surf. बेटा समझाइए। मैम मेरा ब्रांड नेम वो होता है मतलब थोड़ा लाउडर बेटा, सुनाई मतलब नहीं दे रहा है, थोड़ा सा लाउडर। जस्ट अ मिनट। हाँ मैम Okay, वो there is अंदर some रूम में audio problem. I am explaining it. देखिए ब्रांड नेम क्या है? नो मैम ब्रांड का वो पार्ट जिसको आप बोल सकते हो, जिसको आप बोल के एक्सप्रेस कर सकते हो, वही क्या है? ब्रांड नेम है। बहुत ही सिंपल सी बात है भाई, ब्रांड का वो पार्ट जिसे बोला जा सकता है, जैसे डेटॉल, सर्फ, लक्स, ये सारी चीजें। नो ब्रांड मार्क, वो पार्ट जिसको रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, आप बोल नहीं सकते हो, वो ब्रांड मार्क है। सिंपल सी बात है। जैसे आपको बता रखा है, महाराजा साइन ऑफ एयर इंडिया, पेप्सी साइन ऑफ रेड एंड ब्लू बॉल, पेप्सी पे जो रेड और ब्लू बॉल का साइन होता है, तो ये साइंस, एप्पल पे जो एप्पल का साइन है, ये ब्रांड मार्क है। और ट्रेडमार्क क्या होता है? देखिए बहुत ही सिंपल, जब मैं अपने ब्रांड को एक लीगल प्रोटेक्शन दे देती हूँ दैट नो वन इज अलाउड टू कॉपी माय ब्रांड, देन दिस विल बी ट्रीटेड एज ट्रेडमार्क। सुनिएगा ध्यान से, जब मैं अपने ब्रांड नेम को एक लीगल प्रोटेक्शन दे देती हूँ, एक लीगल सेफ्टी दे देती हूँ दैट माय ब्रांड नेम कैन नॉट बी कॉपीड, तो ये बन जाता है ब्रांड, जो ब्रांड मार्क है वो बन जाता है ट्रेडमार्क। ठीक है, तो हमने 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ ली। ब्रांड वो आइडेंटिफिकेशन जो कंज्यूमर को दिया गया, सिंबल भी हो सकता है और नेम भी हो सकता है। अगर सिंबल है तो वो बन जाएगा ब्रांड मार्क, और अगर नेम है तो वो बन जाएगा ब्रांड नेम। और ट्रेडमार्क, जब आपने अपने ब्रांड नेम को या ब्रांड मार्क को एक लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दिया तो वो बन गया ट्रेडमार्क। चलिए भाई, क्वालिटीज और फीचर्स ऑफ अ गुड ब्रांड नेम। क्या क्या क्वालिटीज है? देखिए बहुत सिंपल सिंपल क्वालिटीज है। नंबर 1, ब्रांड नेम शुड बी शॉर्ट एंड सिंपल। शॉर्ट और सिंपल होना चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए, कंज्यूमर को इजीली याद हो। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा तो कंज्यूमर को याद ही नहीं रहेगा, तो वो आपका प्रोडक्ट परचेज कैसे करेगा, राइट? तो ब्रांड नेम जो है वो सिंपल सा और शॉर्ट सा होना चाहिए। दूसरा, ब्रांड नेम शुड बी इजी टू प्रोनाउंस, बहुत इजी टू प्रोनाउंस होना चाहिए।
कंज्यूमर को अगर उसको प्रोनाउंस करने में दिक्कत आ रही है तो वो उसको परचेज ही नहीं करेगा। कंज्यूमर को शर्म आएगी उसको बोलने में और तब कंज्यूमर उस चीज को परचेज करने से हेजिटेट करेगा। तो इसलिए हेजिटेशन को रिमूव करने के लिए ये जरूरी है कि ब्रांड नेम आपका शॉर्ट एंड सिंपल और इजी टू प्रोनाउंस होना चाहिए। दोनों ही बहुत इजी बातें लिखी हुई है। थर्ड देखिए, अ ब्रांड नेम शुड बी सजेस्टिव। कंपल्सरी नहीं है कि सजेस्टिव हो, बट सजेस्टिव होगा तो बढ़िया लगेगा। जैसे उजाला ब्राइटनेस को शो कर रहा है, हेयर एंड केयर सजेस्ट कर रहा है कि हेयर से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट है, हाजमोला सजेस्ट कर रही है कि हाजमा से रिलेटेड है, राइट, डाइजेशन से रिलेटेड है। तो ऐसे सजेस्टिव होना चाहिए। नेक्स्ट, इट शुड बी यूनिक एंड डिस्टिंक्टिव। यूनिक होना चाहिए भाई, बाकियों से डिफरेंट होना चाहिए। आपका नाम जैसे आप चाहते हो ना यूनिक होना चाहिए, वैसे ही तो क्या क्या चीजें हैं, शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए, इट शुड बी इजी टू प्रोनाउंस, इट शुड बी सजेस्टिव, इट शुड बी यूनिक एंड डिस्टिंक्टिव। फिफ्थ वन इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, केस स्टडी में आ सकता है। देखिए क्या कह रहे हैं, brand name should be selected after considering its meaning in other languages and cultures. कह रहे हैं before selecting a brand name, a marketer must analyze its meaning in different languages. आपका जो brand name है उसका meaning सभी languages में clear out कर लीजिए, कहीं किसी लैंग्वेज में उसका रॉन्ग मीनिंग ना हो जो कंज्यूमर्स को मिसकम्युनिकेट करे। जैसे एग्जांपल गिवन है, द ब्रांड नेम नोवा गिवन टू एम्बेसडर कार मींस डज नॉट गो इन स्पेनिश। सच टाइप ऑफ नेम शुड बी अवॉइडेड। ऐसे नेम जो किसी दूसरी लैंग्वेज में कुछ और मीनिंग रखते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। आगे देखिए, एक बार मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। कोको कोला कंपनी ने अपने एडवर्टीजमेंट में यूज किया था एक स्लोगन, कम अलाइव। कोको कोला कंपनी ने अपने एडवर्टीजमेंट में, कंपनी का ब्रांड नेम नहीं था, बट उन्होंने एडवर्टीजमेंट में एक स्लोगन यूज कर लिया था, कम अलाइव, दोज हु हैव कोक दे कम अलाइव। इसका मतलब है लोग अपनी ग्रेव्स में से बाहर आ जाते हैं। सोसाइटी के लोगों ने उसका इतना अपोजिशन किया कि कंपनी को अपना एडवर्टीजमेंट ही बदलना पड़ गया। तो आपको भी ध्यान रखना है, ब्रांड नेम को लेके भी इश्यूज हो सकते हैं, तो आपको ऐसा ही ब्रांड नेम सेलेक्ट करना है जिसका किसी और लैंग्वेज में कोई डिफरेंट मीनिंग ना हो। ये हमने कर लिया है ब्रांड नेम। ब्रांडिंग का मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रांडिंग, देखिए लिखा हुआ नहीं है, आप तो लिख देंगे ब्रांडिंग इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग द आइडेंटिफिकेशन मार्क टू द प्रोडक्ट। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ नेम, सिंबल, डिजाइन एक्सेट्रा। इट मींस आपको ग्रामर को थोड़ा सा चेंज कर देना है, बस बाकी तो सेम ही है। नाउ हैव अ लुक, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ब्रांड नेम। सबसे पहले देखते हैं एडवांटेजेस टू फर्म एंड देन वी विल डिस्कस द एडवांटेजेस टू कॉम्पिटिटर। बिजनेसमैन को क्या फायदा होगा अगर वो अपने प्रोडक्ट को ब्रांड नेम देगा? नंबर वन, with the brand name we can differentiate our product from the competitor's product. हम क्या कर रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, राइट। नंबर टू, इट हेल्प्स इन एडवर्टाइजिंग। हमारा एडवर्टाइजिंग बहुत इफेक्टिव हो जाएगा अगर हम ब्रांड नेम यूज करेंगे। जैसे कैडबरी का एड है, हमें पता है कि ये कैडबरी कंपनी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, तो बहुत इजीली वो और इफेक्टिव होगा। नेक्स्ट, डिफरेंशियल प्राइसेस। अगर हमारा ब्रांड फेमस हो गया, नाउ वी कैन चार्ज हाई प्राइस एज कंपेयर टू आवर कॉम्पिटिटर। जैसे आप डव सोप की बात कर लीजिए, पियर्स सोप की बात कर लीजिए, इनका ब्रांड नेम फेमस हो गया तो अब ये क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटर के कंपैरेटिवली कॉस्टली सेल आउट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इन्होंने मार्केट में एक रेप्यूटेशन डेवलप कर ली है, इन्होंने अपने ब्रांड नेम को फेमस कर लिया है, राइट। आगे देखिए, इजी इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। न्यू प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना काफी इजी होगा अगर एक कंपनी ऐसी है जिसका ब्रांड नेम बहुत ज्यादा फेमस है। Now every time the company is introducing new product, the customers will be excited to welcome the product. ऐसा नहीं होगा कि कंपनी को बहुत एफर्ट करना पड़ेगा, no. As the consumers are already aware with the quality of this particular company, so consumers easily welcome the new products of the company. कंपनी को उसको बहुत ज्यादा उसकी पब्लिसिटी करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, इजीली उसका प्रोडक्ट अपने आप ही पॉपुलर हो जाएगा, कंज्यूमर्स में डिस्कशन होने लग जाएंगे। ये वाला मॉडल आ रहा है इस फोन का, तो राइट। तो ये कह रहे हैं इट विल बी इजी फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू इंट्रोड्यूस न्यू फोन। नाउ हैव अ लुक, कस्टमर को क्या फायदे होंगे। नंबर वन, helps in identification of product.
It will be easy for the customer to identify the product. उसे बहुत easily पता चल जाएगा. अब मेरा particular brand का product है तो मैं easily identify कर लूंगी ना उस brand को देख के. Next, ensures quality. Every time I am purchasing a lipstick of Lakme brand, I am quite assured कि ये जो है ये मुझे कितना satisfaction देगी. Every time you are purchasing a perfume or deo, मैं कहूँ अगर आप फॉग का deo ले रहे हैं तो आप assured है कि इसकी particular quality कैसी रहेगी, right? कोई भी selected brand आप ले रहे हैं तो आपको पता है कि इस brand से related ये benefit तो हमें मिलने वाले हैं. तो ये कह रहे quality assurance हो जाता है. Can anyone tell me any example जिसमें आप एक selected brand लेके आते हैं और आपको पता है कि ये brand ले रहा हूँ तो ये quality तो मुझे मिलेगी ही मिलेगी. Anyone in the class, any girl or any boy? बहुत सारी चीजें हम यूज करते हैं. मैंने लिपस्टिक का एग्जांपल दे दिया. Whenever I am using a lipstick of Lakme brand, I am assured about the quality. Anyone else? Yes, Rajveer. Rajveer, I was happy with your initiative. मुझे लगा आज तो आप आंसर दे रहे हैं. Yes. Yes, ma'am. हाँ जी बेटा. मैम क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, कैन यू टेल मी अबाउट एनीथिंग जिसमें आप ब्रांडेड प्रोडक्ट परचेज करते हैं, कोई भी पर्टिकुलर ब्रांड, एंड यू आर अश्योर्ड अबाउट द क्वालिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट. यस सुशांत. मैम रैंगलर. रैंगलर बिल्कुल सही. आपको क्या अश्योरेंस मिलता है राजवीर? मैम अच्छी है मैम उसकी क्वालिटी. अच्छी क्वालिटी है. चलिए गुड. यस सुशांत. मैम आईफोन की कैमरा क्वालिटी. बिल्कुल वेरी गुड. एनीवन एल्स? वॉच से रिलेटेड कोई ब्रांड आपने यूज किया हो, या गर्ल्स में तो इतनी सारी चीजें, वी आर यूजिंग मेनी कॉस्मेटिक आइटम्स, सारी चीजें ब्रांड रिलेटेड होती है. तो बताइए कोई एक स्टूडेंट. हाँ जी हिमांशु. मैम हाँ आईफोन, अयान ने भी बताया आईफोन. बिल्कुल. और आईफोन नहीं, आई सीरीज 6 वॉच. हाँ बिल्कुल, जब हम वो वॉच लेके आते हैं वी आर अश्योर्ड अबाउट द क्वालिटी. वेरी गुड. हिमांशी बेटा कोई कॉस्मेटिक आइटम जिसमें आप कोई सेलेक्टेड ब्रांड यूज करते हो? हिमांशी माधव. मैम कॉस्मेटिक का रिया से पूछो, रिया ज्यादा यूज करती है. रिया इज नॉट हियर इन द क्लास. और कोई? वंशिका, कौन सा काजल लगाते हो भाई? वंशिका. Yes, ma'am. बेटा कोई पर्टिकुलर ब्रांड जो आप यूज करते हो किसी भी चीज से रिलेटेड, आपको अश्योरेंस हो कि इस ब्रांड में ये क्वालिटी तो हमें मिलेगी मिलेगी. मैम ऐसे कोई पर्टिकुलर नहीं है. ऐसे कोई पर्टिकुलर नहीं है. चलिए नो मैम. बताइए. चलो तो इंश्योर्स क्वालिटी हो गया. थर्ड वन इज वेरी मस्कारा. हाँ मस्का. ये कौन बोला? मैम हाँ चलो, अयान को पता होगा कोई पर्टिकुलर ब्रांड. बताइए क्या? मैं राहुल बोल रहा हूँ. मैं मयान नहीं है. राहुल कहाँ है भाई? राहुल नाम तो मुझे मैं दिख. हूँ. राहुल और मैम अयान, मेरा फोन में यू आर जॉइनिंग आसपास में मोबाइल फोन. मैम मेरा फोन गिर के टूट गया मैम, इसलिए मैंने इसके साथ में ज्वाइन किया आज. इसके साथ में ज्वाइन करें तो साथ में अयान एंड राहुल लिख दीजिए. राहुल की तो एब्सेंट लगा दी मैंने. अरे मैम प्रेजेंट लगाओ, ऐसा मत करो. क्लास ले रहा हूँ मैं. क्या करूं बेटा, मुझे दिख नहीं रही ना, मुझे तो अयान ही नाम दिख रहा है. चलिए गुड. अच्छा हुआ आपने बोला, तो मैं क्या करूंगी, अब अयान एंड राहुल लिख देना आप कल से. ठीक है, अभी मैं आपको रीनेम कर देती हूँ. ओके मैम. चलिए, अच्छी बात है कि आपका फोन टूट गया फिर भी आप क्लास ले रहे हैं. वेरी गुड राहुल, क्लैपिंग फॉर यू. थैंक यू मैम. थैंक यू मैम. चलिए अप्रिशिएट कीजिए भाई. थर्ड वन देखिए, स्टेटस सिंबल. बताइए सबसे ज्यादा कौन सा ब्रांड है जिसको लेके लोग अपना स्टेटस शो करते हैं? जल्दी बताइए. एप्पल. एप्पल का आईफोन. लेते ही सेल्फी क्लिक की और पोस्ट कर दिया. राइट, माय न्यू मोबाइल फोन जरूर दिखाते हैं.
नोकिया का कीपैड वाला फोन लाके कोई अपने पापा के फोन पे स्टेटस लगाता है क्या? गिफ्ट बाय माय फादर, नहीं, है ना? हम लेकिन अगर हम कोई ब्रांडेड चीज लेंगे तो हम शो ऑफ जरूर करेंगे, नहीं करना चाहिए। हम भी, मैं नहीं हूँ, ठीक है? तो बेसिकली ये बोल रहे हैं कंज्यूमर जब ब्रांडेड चीजें लेके आता है ना तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल ही बढ़ जाता है। बस ब्रांडेड चीजें पहनी है, ब्रांडेड क्लोथ्स पहने, ब्रांडेड शूज, अरे वाह पूछो ही मत, फिर तो कॉन्फिडेंस इतना हाई होगा कि पीक पे है, राइट? तो ये एडवांटेजेस है एक अच्छे ब्रांड नेम के कस्टमर्स को और कुछ एडवांटेजेस के फर्म को। आज का बहुत सिंपल सा टॉपिक कर लिया। अब ये वाला टॉपिक जो है ना, ये बच्चों वाला टॉपिक है। पैकेजिंग क्या होता है आप सबको पता है। जब किसी चीज को, सामान को, जो आइटम है उसको किसी पैकेट में डाल दिया जाता है तो वो पैकेजिंग बन जाता है, राइट? तो देखिए आज हम सिर्फ लेवल्स ऑफ पैकेजिंग तक पढ़ते हैं, बहुत सिंपल पार्ट है, बहुत ज्यादा सिंपल। हैव अ लुक। The companies always supply the product in packed form. For example, Coke comes in bottles, tied in bags, biscuits in wrapper, oil in jar, etc. सोचिए चिप्स लेने जाए और वो बोले कंटेनर ले आओ अपना, हम खुले डाल देंगे। चिप्स तो चलो फिर भी हो जाएगा, टूथपेस्ट लेने गए और उन्होंने कहा कंटेनर ले आओ, कैसी सिचुएशन हो जाएगी आप सोचिए। तो ऐसा नहीं होता ना, पैक्ड फॉर्म में ये चीजें हम तक आती है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, packing is the basic activity of every company. It can be defined as a set of tasks or activities, ये definition important है, which are concerned with the designing, production of an appropriate wrapper, container or bag for the product. When I am designing a proper material for packing my product, this will be treated as packaging. The material can be a wrapper, कुछ चीजें रैपर में पैक होके आती है, कुछ कंटेनर्स में आती है तो कुछ बैग्स में आती है, राइट? काफी वॉचेस होती है जो बॉक्सेस में आती है, तो काफी होती है जो छोटे से प्लास्टिक बैग्स में आती है। तो हमें देखना है कि हम अपना प्रोडक्ट कैसे सेल आउट करने वाले हैं। जब हम इस पैकेट को बनाने से रिलेटेड टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं तो इसको कहते हैं पैकेजिंग। पैकिंग नहीं, पैकेजिंग। पैकिंग अलग है, PACKING, पैकिंग इज डिफरेंट। Packaging is a particular activity which is concerned with designing the containers for the product. अब देखिए तीन तरीके की पैकिंग होती है, ये तीन है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड ट्रांसपोर्टेशन। प्राइमरी पैकिंग वो पैकिंग है जो एंड तक चलती है, जब तक हम प्रोडक्ट यूज करेंगे तब तक। जैसे जिस ट्यूब में आपका कोलगेट है, वो ट्यूब, ये वाली जो ट्यूब, ऐसा तो नहीं है कि घर आते ही कोलगेट को इस ट्यूब में से निकाल के कंटेनर में खाली कर लेते हैं, नहीं, इसी ट्यूब से एंड तक यूज करते रहते हैं, है ना? तो जो प्रोडक्ट के जस्ट इमीडिएट पैकिंग होती है, जिसको हम तब तक यूज करते हैं जब तक वो प्रोडक्ट चल रहा है, उसे ही प्राइमरी पैकेजिंग कहते हैं। बहुत सिंपल है। कुछ प्रोडक्ट्स में सिर्फ प्राइमरी पैकेजिंग ही होती है, जैसे कि अंकल चिप्स, चिप्स के जस्ट बाद जो पैकिंग लग रही है, जो रैपर लग रहा है, वही प्राइमरी पैकिंग है। सेकेंडरी पैकिंग देखिए, एडिशनल पैकिंग जो प्राइमरी पैकिंग को सपोर्ट करने के लिए बनाई गई है। जैसे इस ट्यूब को इस कार्डबोर्ड के बॉक्स में डाल देते हैं, तो ये जो बॉक्स मैंने हाईलाइट किया है ये सेकेंडरी पैकेजिंग है। कितनी सिंपल है देखिए, ये जो ट्यूब है इस पे तो अगर पिन लग गई तो होल हो जाएगा, थोड़ा बहुत मुड़ गया तो लगेगा फ्रेश नहीं है टूथपेस्ट, राइट? इसलिए इसको एक छोटे से कार्डबोर्ड बॉक्स में डाल दिया गया टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। तो ये हो गया आपका सेकेंडरी पैकेजिंग। जनरली कंज्यूमर क्या करता है, जनरली जब प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट करता है तो वो उसकी प्राइमरी पैकिंग तो रखता है, सेकेंडरी वाले को थ्रो कर देता है। मैं टूथपेस्ट लाई तो मैं बाहर वाला तो थ्रो कर दूंगी, ये जो ट्यूब है वही रखूंगी, तो ये है सेकेंडरी पैकिंग। पीपल थ्रो द बॉक्स व्हेन दे स्टार्ट यूजिंग द पेस्ट, बताया हुआ है। ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग वो है जो गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते टाइम यूज की जाती है। जैसे कि अब कोलगेट दुकान में आ रहा है तो ऐसा थोड़ी होगा कि ये वाली चीजें जो है, ये बॉक्स जो है, ये सिर्फ एक कट्टे में डाल दिए, नो, इनको क्या किया जाएगा, कार्टून्स में पैक किया जाएगा। तो जो कार्टून्स होते हैं जिनमें प्रोडक्ट पैक किए जाते हैं ताकि उनको इजीली ट्रांसपोर्ट किया जाए, इन्हीं को कहते हैं ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग। सिंपल है ना, एकदम बच्चों वाली चीजें हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है जो याद करना पड़े। जनरल रीडिंग कर लेंगे। पहली बात तो क्लास में अगर 100% प्रेजेंट है तो रीडिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना इजी टॉपिक है। और अगर एक रीडिंग दे भी देंगे तो आपका लॉक हो जाएगा, ये टॉपिक कहीं टफ नहीं है। अब फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग इज योर होमवर्क, आप पढ़ के रखेंगे, हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क।
No? All right, then I am ending the class over here. Make sure you have to recall these topics. You have to learn the chapter up to this part. Have a nice day. Enjoy yourself.